Solid-state chemistry is a fascinating subject that deals with the study of solids and their properties. It forms a crucial part of the Class 12 Maharashtra State Board Chemistry syllabus, as well as other boards, including IIT/NEET and various CETs, to help students grasp the concepts effectively. Ignited Minds Tutorials has uploaded a comprehensive series of videos on this topic. These educational videos cover various aspects of solid-state chemistry, including crystal lattice structures, unit cells, types of solids, and their properties. The tutorials also delve into topics like close packing, voids, imperfections, and defects in solids. With clear explanations and examples, students can deepen their understanding of this important subject. Solid-state chemistry plays a crucial role in different scientific fields, including materials science, semiconductor technology, and drug design. Understanding the basic principles of solid state helps students explore these diverse areas and opens up numerous career opportunities. By watching these video tutorials on solid state chemistry, students can enhance their knowledge, improve their problem-solving skills, and be well prepared for their board exams, entrance tests, or competitive exams like IIT and NEET. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education through their online platform ensures that students have access to reliable and comprehensive learning resources. So, dive into the world of solid-state chemistry and ignite your mind with these enlightening videos. ओके चलिए भाई साहब चालू करते हैं अपन सॉलिड स्टेट। ओके, ब्रैग्स इक्वेशन डेरिवेशन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ब्रैग का इक्वेशन जो है उसको अपन करेंगे। ब्रैग्स इक्वेशन यहाँ पे क्या है भाई साहब, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। बहुत कम यूज होता है एक्चुअली, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ क्रिस्टल लैटिस इन विच आइडेंटिकल एटम्स लाई इन इक्विडिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स 1 2 3 एक्सेट्रा, इंटर पार्टिकल ऑफ प्लैनेट स्पेसिंग इक्वल टू d, ठीक है। तो लेट अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक, तो प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3, आपका देखो ऐसा एक लाइट आया, ऐसे हुआ, ये आपके 3 प्लेन्स हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर अ क्रिस्टल लैटिस इन विच आइडेंटिकल एटम्स, ये आइडेंटिकल एटम्स हैं, लाई इन इक्विडिस्टेंट पैरेलल प्लेन्स। ये आपका एक प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन हो गया और ये तीसरा प्लेन हो गया। दे लाई इन 3 प्लेन्स विद इंटर पार्टिकल और पैरेलल स्पेसिंग इक्वल टू d, इन दोनों के बीच में d, ठीक है, डिस्टेंस है। लेट अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक rays of wavelength lambda strike on the crystal making an angle theta to the plane। तो ये वाला थीटा टू द प्लेन है भाई साहब, ठीक है। ऐसे आपका ये वाला ये थीटा, ठीक है। इस तरह से आपका भाई साहब डी, तो ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देखोगे यहाँ पे लेट द वे, ये आपका कोर्स में नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। एक्चुअली दिस इज नॉट इन योर कोर्स, लेकिन सिर्फ आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। This is that the wave fronts A and B taken as reference planes. So this is all that is required out here. Path difference, this आपका ये physics में आता है ये पूरा, not actually in your course. Let's grab this. यहाँ से है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो अभी बात करेंगे भाई साहब यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये बिल्डिंग है, देखो इस बिल्डिंग में आपका एक यूनिट सेल क्या हो जाएगा, एक ईंटा है ना, तो वो एक यूनिट सेल है। अगर ईंटे का शेप देखो, जैसा ईंटे का शेप होगा वैसा ही सॉलिड का शेप होगा। जैसे ईंटे का शेप ये है, तो बिल्डिंग का शेप भी लगभग यही है, मतलब बिल्डिंग का शेप ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। सो यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस, एक जो क्रिस्टल बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। ओके, so unit cell of crystal lattice, unit cell is the smallest structural unit of a crystal lattice which when repeated in different directions generates the entire crystal lattice। मतलब एक यूनिट सेल आपने लिया, एक ईंटा लिया आपने, ईंटा लिया, इसके ऊपर ईंटे को प्लेस करते गए, इधर प्लेस करते गए, नीचे प्लेस करते गए, इधर प्लेस करते गए, इधर प्लेस करते गए, इधर प्लेस करते गए, तो बिल्डिंग बन गई ना आपकी, वॉल बन गई, वॉल से बिल्डिंग बन गई, ठीक है। ऐसा ही अरेंजमेंट आपके सॉलिड स्टेट में भी होता है, ठीक है। तो आपकी जो पैकिंग होती है इस तरह से होती है, ठीक है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस
विच व्हेन रिपीटेड, तो अलग अलग डायरेक्शंस में हम इसको रिपीट कर रहे हैं, जनरेट्स द एंटायर क्रिस्टल लैटिस। तो अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। तो ये आपका भाई साहब क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, ये भाई साहब आपका बन गया क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। ये आपका एक यूनिट सेल, ये आपका उसके ऊपर साइड में, ठीक है, ऊपर देखो जमता जा रहा है, ये बनता जा रहा है कि नहीं, आगे पीछे, वैसे ही भाई साहब आपका पीछे, तो ये आपका क्रिस्टल लैटिस बनता जाएगा। समझ में आ रहा है, ये सिंपल सा बात है। तो आपका जो क्रिस्टल लैटिस होता है, जैसे बिल्डिंग में एक वॉल का जिस तरह से अरेंजमेंट होता है आपके ब्रिक्स का, वैसे ही आपके क्रिस्टल लैटिस में इस तरह से यूनिट सेल्स का अरेंजमेंट होता है। आदित्य इसको बंद कर देना प्लीज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, प्रिमिटिव और आपका हो गया सेंटर्ड, ठीक है। सो लेट्स लुक एट प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड पीपल। हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। प्रिमिटिव में क्या होता है, समझ लो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। अगेन आपको मैं बता दूं कि ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि यहां पे एक है, 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 यहां पे और यहां पे और यहां पे, ऐसा नहीं है। इट इज लाइक दिस, ऐसा, ये ऐसा है भाई साहब, ठीक है, ये ऐसा है। तो मैंने क्या किया है, हमने एक्चुअली इनके सेंटर्स को ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया है। दिस इज हाउ द क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म। तो आपके इस चैप्टर में आपका विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका हर एक चीज जो आप विजुअलाइज करेंगे वो 3D में रहेगा, 2D नहीं है, सब कुछ 3D में आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ठीक है। और सेंटर्ड मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द पोजीशंस। तो सेंटर्ड मतलब क्या होता है, आर प्रेजेंट एट पोजीशंस इन एडिशन। तो समझ लो सेंटर में एक या यहां पे एक, समझ में आ रहा है। देखो प्रिमिटिव मतलब क्या हो गया, ये आपका प्रिमिटिव है, दिस इज बेसिकली प्रिमिटिव, मतलब ये कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर्स में, ठीक है। और सेंटर्ड मतलब क्या हो गया, जैसे समझो ये सेंटर्ड है, तो 8 कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही, 8 कॉर्नर में तो भाई साहब प्रेजेंट होंगे ही, प्लस कहीं कहीं पे अलग अलग जगहों पे, जैसे इस पूरे के बीच में एक सेंटर है ना, आप देखो उस डायगोनल से इस डायगोनल के बीच में, और यहाँ पे ये दोनों डायगोनल कंसीडर हो रहे हैं, यहाँ पे एक सेंटर में, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बॉडी, इसको अपन बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये आपके फेसेस हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटर पे, यहाँ पे फेस सेंटर्ड हो गया ये, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब, आपका एज सेंटर्ड, यहाँ पे एज में, ठीक है, एज सेंटर्ड। सो ऑल दीज आर देयर। तो आपका भाई साहब अलग अलग बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, एज सेंटर्ड हो सकता है। सो इन एडिशन टू बीइंग प्रेजेंट इन 8 कॉर्नर्स, द एटम्स कुड बी प्रेजेंट एट द सेंटर, कुड बी प्रेजेंट एट द एज सेंटर, कुड बी प्रेजेंट एट द बॉडी फेस सेंटर, ऐसा हो सकता है भाई साहब, फेस सेंटर, ये फेस सेंटर में प्रेजेंट है, एज सेंटर में प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, या एज सेंटर्ड हो सकता है। तो 2 तरीके के हो गए आपके, जो क्रिस्टल लैटिस है वो 2 तरीके का है। एक है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब सिर्फ 8 कॉर्नर्स में, और एक होता है सेंटर्ड। ये सेंटर्ड आपका बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, एज सेंटर्ड भी हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? नो, ठीक है, ओके। सो लेट्स से आपका ये वाला देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको। देखो यहाँ पे आपका ये हो गया बॉडी सेंटर, 8 कोनों में और बीच में, मतलब आप देखो जैसे इस रूम में उधर 2 कोनों में, ये 8 कोने हो गए इसके, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने हो गए। और बीच में यहाँ पे ये बॉडी सेंटर, मतलब इस डायगोनल और इस डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट में, तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर, ठीक है। दिस इज बेसिकली बॉडी सेंटर। ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी फेस सेंटर। ध्यान से देखो, इस फेस में एक, इस फेस में एक, इस फेस में एक, इस फेस में एक, आगे वाले फेस में एक और पीछे वाले फेस में एक। फेस मतलब ये डायगोनल है देखो, ठीक है, और इस बीच में ये डायगोनल, ये रूम का, ठीक है, मतलब ये वॉल का और इसके बीच में, ऊपर के सीलिंग का एक डायगोनल और उसके बीच में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर। ओके, व्हाट एल्स पीपल, हम यहाँ पे ये हो गया भाई साहब आपका, दिस इज ऑल्सो फेस सेंटर, ठीक है, ओके। देन वी हैव एज सेंटर, इसको अपन बोलेंगे एज सेंटर। यहाँ पे तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, दीज आर नोन एज एज सेंटर, ठीक है, ओके। प्रिमिटिव तो आपका हो गया भाई साहब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ये सब आपके होंगे, ठीक है, लिख लीजिए भाई साहब। तो इन सब चीजों को अपन, तो प्रिमिटिव में क्या क्या है, ऑल दीज आर देयर।
हो गया? ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव में क्या है, पहला देखेंगे हम क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है? सिंपल। देखिए 8 कोनों में आपके 8 सॉलिड फॉर्मेट्स हैं, तो दिस इज बेसिकली क्यूबिक। क्या है? सिंपल, समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो, अभी अपन देखेंगे ए, बी और सी। ये आपका हो गया भाई साहब ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया सी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट बेसिकली। क्यूबिक मतलब क्या हो गया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एबीसी। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। और तीनों में भी देखो, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा, ठीक है। देयर इज लेंथ और हाइट के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल लेट्स से बीटा, और ब्रेथ और हाइट के बीच में, मतलब तीनों के बीच में एंगल्स होंगे ना। लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल 90 डिग्री, लेंथ और हाइट के बीच में एंगल 90 डिग्री, और ब्रेथ और हाइट के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सो ये जो अल्फा, बीटा और गामा है, ये तीनों भी 90 डिग्री होगा। इसको अपन क्यूबिक बोलेंगे। सो क्यूबिक की प्रॉपर्टी क्या हो गई? A is equal to B is equal to C, which means all three sides are equal, and the angles which are there between any two sides, there is length and breadth, or length and height, or breadth and height is going to be 90 degree, ठीक है। ओके, टेट्रागोनल अभी अपन देखेंगे भाई साहब, टेट्रागोनल क्या होता है। तो टेट्रागोनल में लेंथ और ब्रेथ बराबर है, मतलब ये A और B बराबर है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C। ये जो हाइट है दैट इज डिफरेंट। तो ये क्या बन रहा है? बेसिकली एक क्यूब बिक हो रहा है। दिस इज बेसिकली क्यूब, और ये हो रहा है आपका क्यूबॉइड, है ना। ये आपका क्यूब है और ये क्या बना रहा है? क्यूबॉइड बना रहा है ना, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, बट दिस इज नॉट। लेकिन अभी भी सारे एंगल्स 90 डिग्री है, मतलब लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल 90 डिग्री, ब्रेथ और हाइट के बीच में एंगल 90 डिग्री, और लेंथ और हाइट के बीच में एंगल 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री स्टिल, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम भाई साहब ऑर्थोरोम्बिक में, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक भाई साहब क्या हो जाएगा? यहां पे ना ए, बी और सी तीनों भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा, लेकिन ये आपका समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक। तो पहला हो गया क्यूबिक, इन विच ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एंड अल्फा, बीटा, गामा ऑल आर 90 डिग्रीज, वेयर अल्फा, बीटा एंड गामा आर द एंगल्स बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड लेंथ एंड हाइट, ठीक है। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा? ए और बी बराबर है, बट इट इज नॉट इक्वल टू सी, बट स्टिल अल्फा, बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा क्या हो जाएगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड इट इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा, बीटा, गामा स्टिल हैपन टू बी 90 डिग्री। तो फर्स्ट इज क्यूबिक, देन सेकंड वन इज टेट्रागोनल, एंड देन द थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक। ये सब नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोगोनल। Okay, now we have the first case which is monoclinic. What is monoclinic here? तो अभी आपका चेंज किस में आएगा? देखिए A, B, C, A, B not equal to C, A is not equal to B is not equal to C. तो यहाँ पे जितने चेंजेस आने थे वो तो आ गए, ठीक है। यहाँ पे अभी तक कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। मोनोक्लिनिक क्या हो जाएगा भाई साहब? A is not equal to B is not equal to C, अल्फा, गामा 90 डिग्री है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक एंगल में चेंज आ गया, ठीक है। अल्फा और गामा 90 डिग्री हो गया, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एक कोई एंगल आपका 90 डिग्री का नहीं होगा, मोनोक्लिनिक हो गया ये। दिस इज बेसिकली मोनोक्लिनिक, थोड़ा एक टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक इस तरीके का दिखेगा आपको, ठीक है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा, बीटा, गामा तीनों में से कोई भी आपका 90 डिग्री नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे मोनोक्लिनिक में आपका एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा और ट्राई क्लिनिक में तीनों भी एंगल आपके 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल कैसा होगा? मिठाई के डब्बे देखे हैं जो दिवाली में बंटते हैं, ऐसे 6 होते हैं, ऐसा ऐसा होता है ना, ठीक है। तो एक लेयर और दूसरा लेयर, हेक्सागोनल ऐसा होता है। दिस इज बेसिकली हेक्सागोनल। देखो यहाँ पे एक लड्डू और इसके, और यहाँ पे एक लड्डू और ऐसे, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल। दिस इज नोन एज हेक्सागोनल। यहाँ पे ए और बी बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू सी। समझ में आ रहा है? ए और बी बराबर है बट दिस इज नॉट इक्वल टू सी। अल्फा और बीटा आपका 90 डिग्री है, बट गामा की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री। गामा की वैल्यू अभी देखो कितना हो जाएगा, ये वाला देखो दिस, ठीक है, और ये, इनके बीच में एंगल कितने का होगा? 120 का। मतलब हर एक एंगल देखो यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 120 का। ये वाला एंगल कितने का? 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 120 का। ये वाला एंगल कितने? 120 का, ठीक है। तो ए और बी में कितने का एंगल आ रहा है? 120 का। ये वाला एंगल हालांकि 90 का है, देखो ये वाला भी आपका 90 का, ये वाला भी आपका 90 का, ये सब 90 का ही है। तो इसलिए आपका अल्फा और बीटा वाला जो एंगल है वो 90 का होगा, लेकिन गामा वाला एंगल, एक एंगल आपका 120 का हो जाएगा। ये सारे आपको याद रखने हैं। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल भाई साहब क्या हो जाएगा? इस तरीके का। रोम्बोहेड्रल इज दिस शेप वेयर ए और बी और सी बराबर हैं, अल्फा और बीटा इज इक्वल टू गामा बट नन ऑफ देम आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली रोम्बोहेड्रल। ये आपके प्रिमिटिव टाइप्स हो गए, दीज आर बेसिकली प्रिमिटिव टाइप्स। सेंटर्ड, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब सेंटर्ड। तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर, मतलब आपके 8 कोनों में 8 एटम्स और प्लस बॉडी में एक सेंटर, ठीक है। सो बॉडी सेंटर्ड हो गया आपका। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फेस सेंटर्ड। अभी देखो इसको ऐसे इमेजिन करो, ये आपका क्यूब है, ये एक फेस और ये एक फेस, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ऊपर एक फेस और नीचे एक फेस, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, और साइड वेज एक फेस है, ठीक है। ये दो फेस और आमने सामने एक फेस। सो दीज आर फेस सेंटर्ड, ओके। देन वी हैव बेसिकली व्हाट पीपल, हम एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड मतलब सिर्फ इस फेस में और इस फेस में एक रहेगा। सो दीज आर एंड सेंटर्ड। सो पहला हो गया बॉडी सेंटर्ड, देन वी हैव फेस सेंटर्ड एंड देन वी हैव एंड सेंटर्ड, ठीक है। ये आपके सेंटर्ड हो गए। प्रिमिटिव एंड इट्स वेरिएशन विथ सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव आपका भाई साहब देखो यूनिट सेल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ठीक है। यूनिट सेल आपका क्यूबिक, तो क्या हो जाएगा बोलो? यूनिट सेल अगर आपका क्यूबिक है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दैट इज 90 डिग्री। प्रिमिटिव में आपका इस तरीके का दिखेगा आपका ये, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में इस तरीके का दिखेगा बॉडी के सेंटर में, और फेस सेंटर्ड में किधर दिखेगा भाई साहब? आपके फेसेस में, और एंड सेंटर्ड में सिर्फ एक, ठीक है, एक में भाई साहब ऐसा रहेगा, ठीक है। आपका टेट्रागोनल देखो यहाँ पे, टेट्रागोनल, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड हो गया ये आपका, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड, ये हो गया आपका एंड सेंटर्ड, ये हो गया आपका ऑर्थोरोम्बिक। देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले इस चीज को समझो, ठीक है। जो चीज पॉसिबल नहीं है ना वो नहीं बनेगी, जो चीज पॉसिबल नहीं है वो नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका देखो फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, क्यूबिक है, ये हो गया क्यूबिक, ये हो गया प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, ये हो गया फेस सेंटर्ड, और यहाँ पे एंड सेंटर्ड इसमें नहीं बनेगा। किस में नहीं बनेगा भाई साहब? क्यूबिक में एंड सेंटर्ड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? इसलिए क्योंकि देखो बॉल्स को जब आप अरेंज करोगे, ये सामने 2 बॉल्स, ये पीछे 2 बॉल्स, और ऊपर जैसे बॉल को अरेंज करने जाओगे तो चिटक जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एंड सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है, एंड सेंटर्ड इज नॉट पॉसिबल। क्यूबिक में प्रिमिटिव पॉसिबल है, ये क्यूबिक है, इसमें प्रिमिटिव पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल है, फेस सेंटर्ड पॉसिबल है, लेकिन एंड सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 14 ऐसे लैटिसेस होंगे, गिनते जाइए, 1 2 3, ठीक है, ओके। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में हमने क्या देखा? ए और बी बराबर है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, ठीक है। प्रिमिटिव में इस तरीके का हो जाएगा, पॉसिबल है, ठीक है। और बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल में पॉसिबल है, ठीक है। तो कितने हो गए आपके? 3 और 2 5, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये 3 और इधर 2 5। फेस सेंटर्ड आपका इसमें पॉसिबल नहीं है, एंड सेंटर्ड भी आपका इसमें
पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, यहां पे A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। प्रिमिटिव अगर आप देखोगे ये हो गया, बॉडी सेंटर्ड इज दिस, ठीक है, फेस सेंटर्ड इज दिस, एंड सेंटर्ड, मतलब इसमें चारों भी पॉसिबल हैं। कितने हो गए आपके? 5 और 4 9, ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं मोनोक्लिनिक में, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू गामा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड ये दोनों आपके नहीं होंगे, दीज टू आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड ही पॉसिबल है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका भाई साहब ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में क्या हो जाएगा? A इज नॉट इक्वल टू B, इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। प्रिमिटिव पॉसिबल है, कितने हो गए? 12, ओके। हेक्सागोनल ये हो गया आपका, ठीक है, हेक्सागोनल हो गया, ये एक ही पॉसिबल है, ये तीनों भी हेक्सागोनल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का भाई साहब A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, दिस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो आपका रोम्बोहेड्रल में सिर्फ यही पॉसिबल होगा। 14 हो गए, ठीक है। सो इसको अपन क्या बोलेंगे? 14 ब्राविस लैटिसेस, ठीक है। इसको 14 पॉसिबल लैटिसेस हैं जिसको हम ब्राविस लैटिसेस बोलते हैं। थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है, ओके। तो क्यूबिक में आपका क्या क्या आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब। क्यूबिक में आपका प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है एंड फेस सेंटर्ड है। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव है और बॉडी सेंटर्ड है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों भी हैं, ठीक है। और भाई साहब मोनो क्लिनिक में प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड है। ट्राई क्लिनिक में ओनली प्रिमिटिव, हेक्सागोनल में ओनली प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल में ओनली प्रिमिटिव। 1 2 3 4 5, 5 + 4 9 10 11 12 13 14। That is how you are getting 14 Bravais lattices. Clear? Are we clear on this one, people? Okay. Primitive and its possible variations with centered unit cell. ठीक है, तो आपका भाई साहब 3 2 4 2 1 1 1, ऐसा अगर आप याद रखोगे 3 2 4 2 1 1 1, ऐसे याद रखना है, ठीक है। 3 2 4 2 1 1 1। भाई साहब यहाँ पे देखो ना कितने हो गए? 3 2 4 2 1 1 1, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, क्योंकि उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो 3 2 4 2 1 1 1, दैट्स हाउ यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है, ओके ओके। 3 2 4 2 1 1 1, ओके ओके। तो आपके 14 ब्राविस लैटिसेस हो गए। These are known as 14 Bravais lattices. The 7 primitive unit cells and their possible variations as centered unit cells gives rise to 14 three-dimensional lattices called as Bravais lattices. ठीक है, तो 7 primitive unit cells and their possible variations as centered unit cells gives rise to 14 three-dimensional lattices, और इनको अपन क्या बोलेंगे? Bravais lattices, ठीक है, ओके। Which is not a type of unit cell? इनमें से कौन सा भाई साहब आपका unit cell नहीं है? What is not a unit cell? Tetrahedral is not a unit cell, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल हमने पढ़ा है भाई साहब, यूनिट सेल्स हैं, ठीक है, ओके। फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? नन ऑफ दिस। सब के सब आपके प्रिमिटिव में आते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम बेसिकली कम टू प्रिमिटिव। A इज इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C। देखिए जरा इसमें क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दैट इज 90 डिग्री, y is equal to 120 degree is dimension of cubic, tetragonal, hexagonal और none of these। तो ये hexagonal हो जाएगा 120 डिग्रीज का, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली hexagonal। ये दोनों आपके 90 डिग्रीज हो गए। hexagonal मतलब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही भाई साहब 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे भाई साहब जो कनेक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं hexagonal, ठीक है। A is not equal to B, B is not equal to C, alpha is equal to gamma is equal to 90 degree, beta is not equal to 90 degree is a dimension of monoclinic हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। सो कल हम स्टार्ट करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल और उनके मेजरमेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पीपल। ओके, सो बच्चा पार्टी अपन कर रहे थे भाई साहब सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में भाई साहब एमसीक्यूज। आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सेम चार्ज, होगा ये करेक्ट? सेम चार्ज की ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज। इसीलिए देखो सवाल को ध्यान से पढ़ा करो।
यहाँ पे सेम चार्ज नहीं होगा, इट विल बी ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। ओके, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन आयंस ऑफ सेम चार्ज, ठीक है, और बोथ बी एंड सी, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, सेम चार्ज रिपल्शन, क्या ऐसा होगा? सो बोथ बी एंड सी होगा। देखो कैसे, ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। मतलब आपका भाई साहब आयनिक सॉलिड है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अभी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया भाई साहब? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज, ये तो हो गया भाई साहब, ठीक है। नाउ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन आयंस ऑफ सेम चार्ज, सेम चार्ज के रिपल्शन की वजह से भी होता है, ठीक है। जैसे जैसे समझो भाई साहब, यहाँ पे आपका सोडियम का जो ये है, क्या कहते हैं अपना एटम है, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, मतलब जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, आजू बाजू क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्लोरीन का जो सेंटर एटम होगा वो पॉजिटिव, मतलब जो आपका न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा? होगा भाई साहब। क्या इन प्रोटॉन्स में रिपल्शन होगा? न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा? होगा भाई साहब, ठीक है। सो इसीलिए इट विल बी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिट चार्जेस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन आयंस ऑफ सेम चार्ज, ठीक है। आयंस ऑफ सेम चार्ज मतलब ये आपके आयंस ऑफ सेम चार्ज है, ये और ये और ये और ये, तो इसके लिए बोथ बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन आयनिक सॉलिड डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एटम, चार्ज ऑफ एटम, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ऑल ऑफ द अबव। देखो आपने देखा कैसे अरेंज थे, ये आपका कटायन अनायन, कटायन अनायन, यहाँ पे कटायन है, इधर अनायन, ऐसे अगर हम जाएंगे, ऐसे अगर हम जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो अनायन, फिर कटायन, ऐसे है ना भाई साहब, क्यूब में, ठीक है। ओके, तो किस पे डिपेंड करेगा? एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा। तो इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एटम, ठीक है। चार्ज ऑफ द एटम, क्या क्या चार्ज है भाई साहब, क्योंकि कटायन और अनायन के चार्ज पे डिपेंड करेगा ही। आयनिक सॉलिड है, कितना स्ट्रांगली ये चार्जेस अरेंज रहेंगे विद इन द क्रिस्टल लैटिस, दैट विल डिपेंड अपॉन द चार्ज, ठीक है। व्हाट एल्स? पोलराइजेशन ऑफ द अनायन, मतलब कितना पोलराइज हुआ है, कितना नेगेटिव चार्ज है, इन सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आइडियल सिनेरियो इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड, ब्रिटल, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी। आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड, ब्रिटल, ये भी सही है, नॉन कंडक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ये गलत है। आयनिक सॉलिड्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दो चीजों में, एक तो भाई साहब मोल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट में, मोल्टेन या फ्यूज स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इन दोनों स्टेट्स में वो करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, तो बोथ ए एंड बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। On application of shear force, ionic solids slide over each other, are fractured, shows no effect, both A and B। तो yes, अगर shear force रहेगा, मतलब एक लेवल के ऊपर ऐसा, ऐसे अगर आपने shear force लगाया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। They will slide over each other and they are fractured as well, तो both A and B होगा ये, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स, अभी हम मेटालिक सॉलिड्स की बात करेंगे। तो मेटालिक सॉलिड्स में सब के सब आपके पॉजिटिव आयंस होंगे, है ना। दिस इज बेसिकली अ मेटालिक सॉलिड, ठीक है। ओके, सो मेटालिक सॉलिड में ये आपके सारे मेटल एटम्स हैं, ऑल दीज आर बेसिकली मेटल एटम्स। दिस मेटल एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई साहब। सारे मेटल एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। सो दीज विल बी मेटल एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bonded electron from the valency state is known as ionization potential। देखो सोडियम है, ये आप पढ़ चुके हैं बेसिकली, सोडियम है, ठीक है। सोडियम में क्या स्ट्रक्चर है? 281। इस एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम खोना चाहता है क्योंकि इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, तो इसीलिए वो चाहता है कि कोई लेकर जाए भाई साहब, ठीक है। तो व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that you need to give a sodium atom so that it gets rid of this one electron, okay, and becomes stable. So what is ionization potential? The amount of energy required for an electron of sodium to escape its orbit, okay. So electron, so energy required to remove the most loosely bonded electron
from the valency shell of isolated gaseous atom is known as ionization potential. ये होता है आपका ionization potential, ठीक है। मेटल्स की ionization potential लो होगी क्योंकि वो तो तैयार बैठे हैं कि उनसे इलेक्ट्रॉन निकले, they are basically ready when the electron escapes out from them, ठीक है, they are already ready। तो आपका मेटल एटम में they are already ready, since metals have low ionization potential they lose electron easily, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन्स को खोएंगे, ठीक है। सो सिंस दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, ये देखिए आपके पास अब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, ठीक है। ओके, मेटल आयन, तो ये जो बचता है इलेक्ट्रॉन्स के जाने के बाद उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटल आयन और कर्नल, दैट इज नोन एज द कर्नल। कर्नल मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो व्हाट रिमेन्स आफ्टर द एग्जिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन अ मेटल स्ट्रक्चर और लैटिस इज नोन एज द कर्नल, ठीक है, इसको अपन कर्नल बोलते हैं। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो भी आप बोलना चाहें इसको। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं अपने एटम से, डीलोकलाइज हो गए हैं अपने एटम से, भाई साहब डीलोकलाइज हुए हैं, या मोबाइल इलेक्ट्रॉन से, मतलब जो मूव हो सके वैसे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। दीज आर फ्री, डीलोकलाइज और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पे क्या एक समुंदर मिल जाता है आपको इलेक्ट्रॉन्स का, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। So the constituent particles in the metallic solids are metal, ion and free electrons. तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, किसी भी मेटल एटम में, ठीक है, there will be positive charges and free electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। So what are the constituent particles in the metallic solids? Metal ions and free electrons. Metal ions and free electrons, ठीक है। Okay. तो आपका देखो ये मेटल आयन जो है, ठीक है, देयर इज बेसिकली सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकलता है यहाँ से। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन मेटालिक सॉलिड्स आर मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड मेटालिक आयंस, दिस इज नोन एज अ मेटालिक बॉन्ड। अपन इसको क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड। आर वी क्लियर? ओके, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके भाई साहब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी हैं एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी भी है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर हार्ड, ठीक है, हार्ड है भाई साहब। मेलिएबल, व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबल एंड डक्टाइल? देखो मेलिएबल होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, टू बी बीटन अप इनटू शीट्स। पीट के इनको शीट्स बना सकते हैं, इनटू शीट्स। आपने मेटालिक शीट्स देखे होंगे, पीट के लोहा भाई साहब, अगर एक चौक को आप पीटने जाएंगे वो टूट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसी ग्लास को आप पीटने जाएंगे भाई साहब चकनाचूर हो जाएगा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन अप इनटू शीट्स, दैट इज नोन एज मेलिबिलिटी। एंड डक्टिलिटी क्या होती है, द मेटल की प्रॉपर्टी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दे आर हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो हम बता सकते हैं कि मेटल सॉलिड्स में क्या होता है, एक कर्नल होता है और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटालिक आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों गुड कंडक्टर्स हैं? बिकॉज दे हैव अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो मूव हो सकें, दे हैव अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्टेंस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर बेसिकली द वंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल। दे आर हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ है ना भाई साहब, इन दोनों में अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए इसको तोड़ने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा इनका, याद रखिएगा, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होगा, ठीक है। ओके, दे पोजेस लस्टर एंड कलर। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज आपने 7th 8th में पढ़ी थी वही है, ठीक है। इनमें एक चमक होती है, इनका एक कलर होता है, इनमें सोनोरिटी होती है, अगर इसको आवाज करेंगे तो आवाज आएगा, ठीक है, सोनोरस होता है, लस्टर, कलर, ठीक है। ओके, मेटालिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, व्हाट आर दे कंसिस्टिंग ऑफ? मेटल आयन, कर्नल, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। सिंपल, ऑल ऑफ दीज, मेटल आयन, कर्नल, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। कर्नल इज बेसिकली द पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, और मेटल आयन तो कंसिडर करेगा उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी ऑल ऑफ दीज। ओके, कर्नल इज व्हाट पीपल? मेटल आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक सॉलिड्स, बोथ ए एंड सी। कर्नल विल बी व्हाट पीपल? मेटल आयन, जो मेटल का आयन होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होगा, दैट विल बी द कर्नल।
ओके, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सॉलिड, लस्टरस, क्या ये होगा? मेटालिक सॉलिड का प्रॉपर्टी है शाइन रहेगा इसमें, ठीक है। सॉफ्ट, ये गलत है, ठीक है, हार्ड होगा इनका, ठीक है, दे विल बी हार्ड। हाई मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। एक्सेप्शन क्या है यहां पे? एक्सेप्शन है आपका सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। एक पनीर के टुकड़े को जैसे आप नाइफ से काट सकते हैं, वैसे ही सोडियम और पोटेशियम के पीस को भी आप काट सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली एक्सेप्शंस, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, सॉफ्ट। ओके, मेटालिक बॉन्ड इज फोर्स बिटवीन डैश एंड डैश, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम एंड आयन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो आपका बोथ बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों भी आपका सही हो जाएगा। सो बोथ बी एंड सी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं? दीज आर नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स from the formation of covalent bonds between the adjacent atoms throughout the crystal, ठीक है। So ये आपके क्या है भाई साहब? नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स from the formation of covalent bonds between adjacent atoms throughout the crystal. These are giant molecules. Covalent bonds are strong and directional, ठीक है। ये नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, नॉन मेटल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स from the formation of covalent bonds between adjacent atoms to the crystal. तो covalent bonds बन रहे हैं भाई साहब, एक एटम ए है और एक एटम बी है, इन दोनों के बीच में किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट। कोवैलेंट मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है। जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं ये। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल, स्ट्रॉन्ग होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल मतलब क्या हो जाएगा? देखो समझो भाई साहब, आपका एक कंपाउंड है ए और एक एलिमेंट है बी, इन दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से बी में क्या हो जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और ए में क्या हो जाएगा? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, तो यहां पे ये बॉन्ड क्या है? डायरेक्शनल है, the bonds are directional, ठीक है। These solids are very hard and brittle, तो बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। They are very hard as well as brittle. They have extremely high melting points and may decompose before melting. तो इनका जो melting point होता है वो extremely high होता है, ठीक है। They have extremely high melting points and may decompose before melting. उसके पहले ही भाई साहब ये decompose हो जाएंगे, ठीक है, before melting, ठीक है, उसके पहले ही भस्म हो जाएंगे कोवैलेंट सॉलिड्स में। ओके, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, इस तरीके के भाई साहब आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ग्राफाइट इज सॉफ्ट सॉलिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो इट इज अ नेटवर्क सॉलिड, तो एक एक्सेप्शन है ये भाई साहब, ठीक है। ग्राफाइट आपका सॉफ्ट है और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, वो इसलिए है क्योंकि ग्राफाइट में जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो लेयरिक है, एक के ऊपर एक लेयर है, और इन लेयर्स के बीच में स्पेस बन जाता है और इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। सो बाय द अरेंजमेंट ऑफ ग्राफाइट लेयर्स वन अबव द अदर, ठीक है, you get a lot of space between the layers because of which the electrons are almost free to move through them, ठीक है। So free electrons in graphite are responsible for good electrical conductivity of graphite. Graphite has layer lattice structure which is responsible for its lubricating nature. आपने देखा रहेगा आपकी बाइक की सर्विसिंग में या ये जो शटर्स हैं इनकी सर्विसिंग में ग्राफाइट लगता है, क्योंकि ग्राफाइट लुब्रिकेंट है, ठीक है, वो मतलब स्मूथ बनाता है सरफेसेस को, ठीक है। तो उसका एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर कंटिन्यूसली स्लाइड हो पाता है, इसलिए वो लुब्रिकेंट है, ठीक है। ग्राफाइट हैज अ लेयर लैटिस स्ट्रक्चर which is responsible for its lubricating nature and higher temperatures and due to strong covalent bonds among carbon atoms, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट अगर आप देखोगे ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट है, देखो लेयरिक अरेंजमेंट है, दीज आर ऑल व्हाट पीपलम, दीज आर लेयरिक अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब लेयरिक अरेंजमेंट ऑफ ग्राफाइट, दिस इज लेयरिक अरेंजमेंट ऑफ ग्राफाइट, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो इसके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं,
और इसीलिए ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर, इसीलिए ग्राफाइट गुड कंडक्टर है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नेटवर्क और अ कोवैलेंट सॉलिड, it should not be conducting electricity. However, here it is both soft as a lubricant and conducts electricity as well. This is all due to its layeric arrangement. इस तरह का layeric arrangement, ये सारे जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो इस तरह से लेयर्स में हैं, ठीक है। तो लेयरिक अरेंजमेंट की वजह से ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी बनती है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का बॉन्डिंग है, लेकिन इस तरह के बॉन्डिंग के बीच में दे फॉर्म लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। सो यहाँ पे ये सारे लेयर्स हैं, ठीक है। और probing the structure of solid, X-ray crystallography, X-ray diffraction studies of crystal lattice gives a detailed crystalline structure of crystalline solid. The regular arrangement of atoms and molecules in crystal act as transmission grating to X-rays was proposed by M1 Loy. इस जरूरी नहीं है ये, ठीक है। ब्रैग, ठीक है, ब्रैग का इक्वेशन है बेसिकली। अ क्रिस्टल, बेसिकली आपका जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, हाउ इज इट अरेंज्ड, एक क्रिस्टल का अरेंजमेंट क्या होता है। A crystal is composed of a series of equally spaced atomic planes. तो यहाँ पे भाई साहब ऐसे atomic planes हैं, ठीक है, atomic planes, ठीक है, and act as a transmission grating but also as reflecting grating. ये आपको अभी जरूरत नहीं है। If the reflected waves not required. Covalent solids are क्या हो जाएंगे भाई साहब, non-metal crystalline solids, covalent in nature, have high melting points, all of the above, all of the above हो जाएगा भाई साहब, ओके। तो हमने भाई साहब सारे सॉलिड्स की स्टडी की हुई है यहाँ पे, ठीक है। आपका मेटल्स, आपके कोवैलेंट सॉलिड्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। अभी हम धीरे धीरे मूव करेंगे कि कैसे क्रिस्टल लैटिस में इनका अरेंजमेंट होता है और कैसे कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है। हाउ आर दे बेसिकली कैलकुलेटेड, इसका साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो एटम्स के बीच में भाई साहब जो पॉइंट है उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कंसिडर एज ऑफ नाउ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे पीपलम। ओके, सो यहाँ पे देखो अपन कल कर रहे थे ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज बेसिकली ब्रैग्स इक्वेशन, आपको इसके इक्वेशन के डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन क्या है, n इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका देखें, समझ लीजिए, दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन। ये लैम्डा क्या है भाई साहब, वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे यूज्ड। आप बेसिकली एक्सरे को यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल्स एक लैटिस में, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एक्सरेज एंड द प्लेन ऑफ द क्रिस्टल, द रिफ्रैक्टेड बीम मेक्स एन एंगल 2 थीटा। तो आपका ये थीटा एंगल हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज अ क्रिस्टल, एन आपका एक इंटीजर हो गया। सिंपल है भाई साहब, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एक दो सवाल इस पे देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत कम ही इस पे पूछा जाता है, बट स्टिल अ सैंपल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड scatters a beam of X-rays of wavelength 70.93। तो आपका भाई साहब वही देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड scatters a beam of X-rays of wavelength, यहाँ पे आपको वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 70.93 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 70.93 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये हो गया आपका लैम्डा, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 2 थीटा, तो ये आपके भाई साहब 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 14.66 डिग्रीज। तो आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, 14.66 अपॉन 2। सो दैट विल बी हाउ मच, 2 7 जा 14, 3 जा 3 जा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू इतनी हो गई 7.33, ठीक है, डिग्रीज। तो आपका भाई साहब यहाँ पे n lambda is equal to 2d sin theta। if this is a second order reflection, second order reflection मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स ऑफ एटम्स, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इस d की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो n लैम्डा बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू d। n की वैल्यू भाई साहब हो गई 2 और लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 70.93 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन भाई साहब यहाँ पे हो गया 2 साइन थीटा, तो 2 साइन ऑफ 7.33 डिग्रीज, ठीक है। अभी जो भी इसका वैल्यू आएगा इस तरह से आप इसको निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, एक और सवाल देख लेते हैं इसमें सिंपल सा, ठीक है, ताकि आपको ये ब्रैग्स इक्वेशन को यूज करना आ जाए। तो कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ एक्स रेज विच गिव अ डिफ्रैक्शन एंगल। जब भी हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन एंगल की, डिफ्रैक्शन एंगल बेसिकली क्या होगा, 2 थीटा की वैल्यू होगी और ये 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 16.8 डिग्रीज।
थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.4 डिग्रीज, ठीक है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज 0.2 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 1, ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है साइन ऑफ 8.4 डिग्रीज आपका कितना है 0.146, ये वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो आपका भाई साहब थीटा का वैल्यू कितना हो गया 8.4, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी 2d साइन थीटा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हो गई 2d साइन थीटा अपॉन n, 2d साइन थीटा अपॉन n। अभी यहां पे हो गया 2 इंटू डी, दैट इज 0.2 नैनोमीटर, ठीक है, दैट इज इंटू 10⁻⁻9। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई साइन 8.4 डिग्रीज अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1, सो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 0.584 नैनोमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब लैटिस पॉइंट क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो अभी हम पहले देखो लैटिस जो देखेंगे, एक आप देखेंगे 2 डायमेंशन में और दूसरा आप देखेंगे 3 डायमेंशन में, ठीक है। ओके, सो द मेन फीचर्स ऑफ अ लैटिस, आपके जो मेन फीचर्स है लैटिस के वो क्या क्या हैं। अ लैटिस शुड बी इनफाइनाइट, बहुत बड़ा भाई साहब होगा, लैटिस शुड बी इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही देखा हम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो आपका डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, ठीक है। जो डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट इज फॉर तो अ क्रिस्टल लैटिस शुड बी इनफाइनाइट, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड अ लैटिस पॉइंट। हर एक पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस, स्ट्रेट लाइन से जॉइंड है। अ लैटिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्रिस्टल, एक जो लैटिस होता है वो क्रिस्टल से डिफरेंट होता है। A lattice is different from a crystal. In fact, a lattice gives rise to crystal when points are replaced by particles such as atoms, ions or molecules. ठीक है, तो ये आपके भाई साहब एक lattice is different from a crystal. In fact, a lattice gives rise to crystal. तो एक lattice से भाई साहब आपके crystals निकलते हैं, ठीक है, when points are replaced by particles such as atoms, ions or molecules. Are we clear on this one, people? ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे 2 डायमेंशन के जो लैटिसेस हैं वो आपके कितने टाइप के हैं भाई साहब 5, ठीक है। सो वी विल लुक इनटू, जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो गया 1 और इधर वाला हो गया 1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ओके, अभी आप इधर आओ, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया √2, 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 ना, देखो 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 समझो इसको, ठीक है, समझो समझो समझो, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए भाई साहब, ये आपका 1, ये आपका 1, तो ये कितना हो गया √2, ये वाला डिस्टेंस में फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, ये हो गया √2 और ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये हो गया √2 और ये हो गया भाई साहब आपका 1, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 हो गया और ये 1 हो गया, √2 और 1, तो इसका कितना हो जाएगा देखो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच √5, ये हो गया आपका √5, ठीक है, क्लियर है। सो ये हो गया आपका √5, ये आपका भाई साहब हो गया 1। तो इस तरह से अपन लैटिस पॉइंट्स के डिस्टेंसेस को निकालते हैं, ठीक है, वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। ओके, अभी आपका जो 2 डायमेंशनल लैटिस है, 2 डायमेंशनल लैटिस मतलब आपने 3 डायमेंशन को कंसिडर ही नहीं किया है, और आपने कैसा कंसिडर किया, ये गोला 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 गोला, ऐसे एटम्स भाई साहब एक ही डायमेंशन में अरेंज्ड है, ऐसे नहीं अरेंज्ड है, क्यूबिक क्रिस्टल आपने नहीं माना है, तो 2 डायमेंशनल लैटिस है, ठीक है। इसमें भाई साहब क्या क्या हो जाएगा, स्पेस लैटिस, ठीक है, इज रेक्टेंगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, तो समझ लो ये आपका लैटिस है, दिस इज बेसिकली आपके सारे जो एटम्स हैं वो अरेंज्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया लेट्स से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी बराबर है और एंगल और ए और बी के बीच में कितना है 90 डिग्री, तो स्क्वायर लैटिस हो गया, ये पहला लैटिस हो गया, ठीक है। 2 डायमेंशनल लैटिसेस में ये आपका पहला लैटिस हो गया। रेक्टेंगुलर लैटिस में क्या होगा, ए और बी बराबर नहीं होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, 90 एंगल अभी भी है, तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस,
मतलब यहाँ पे आपका ऐसे लैटिसेस अरेंज्ड हैं और बीच में एक लैटिस अरेंज्ड है। तो आपका ये वाला डिस्टेंस हो गया ए और ये वाला डिस्टेंस हो गया बी। अभी ए और बी बराबर हैं, लेकिन ए और बी के बीच में 90 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री है। तो दिस इज कॉल्ड अ हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल लैटिस। ठीक है, फिर आता है भाई साहब आपका पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ए और बी बराबर है, लेकिन अगेन ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। सो दिस इज बेसिकली अ 2 डायमेंशनल पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे ये लैटिस ऐसे है, देखो ये सारे एटम्स हैं ऐसे अरेंज्ड हैं, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, ए और बी बराबर, और ये हो गया आपका 90, तो स्क्वायर लैटिस हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे फैल रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, हाउएवर द एंगल इज स्टिल 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे लैटिस के स्ट्रक्चर को देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपको बेसिकली क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर लैटिस हो गया। ठीक है, मतलब ए दो एटम्स के बीच में इस साइड में जो डिस्टेंस है और दो एटम्स के बीच में इस साइड में जो डिस्टेंस है उसमें फर्क है, लेकिन ये दोनों लाइंस में आपका 90 डिग्री अभी भी बन रहा है। यहाँ पे दो एटम्स का डिस्टेंस और यहाँ पे दो एटम्स का डिस्टेंस सेम है और 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एक स्क्वायर लैटिस बना रहा है। अभी हम आते हैं भाई साहब हेक्सागोनल लैटिस में। हेक्सागोनल लैटिस मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाला भी इधर ही होगा भाई साहब, ये खिसक क्यों गया पता नहीं। ठीक है, ये वाला इधर ही होगा, तो ऐसे 6 हैं और बीच में एक है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे इससे इसको ज्वाइन मत करो, इससे इसको ज्वाइन करो, ए और ये हो गया बी, तो ए और बी बराबर हैं और इनके बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये हो गया हेक्सागोनल 2D लैटिस, ये हो गया स्क्वायर 2D लैटिस, ये हो गया रेक्टेंगुलर 2D लैटिस। ये 2 डायमेंशनल वाले लैटिसेस हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम पैरेललोग्राम। तो अभी आप अगर देखोगे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस तरीके का हो गया है, इट हैज बिकम अ पैरेललोग्राम। तो ध्यान से देखो, ये एक पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम जहां पे ए और बी बराबर है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 का नहीं है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम लैटिस। रोम्बिक, रोम्बिक मतलब क्या हो गया, ये रोम्बस बन रहा है। देखो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग अ रोम्बस। ये आपका भाई साहब क्या बन रहा है, रोम्बस बन रहा है। ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग अ रोम्बस, इस तरीके का रोम्बस बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये एक रोम्बिक लैटिस हो गया, मतलब यहाँ पे ए रोम्बस में आपके साइड्स बराबर होते हैं और जो एंगल्स होते हैं वो 90 के नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग अ रोम्बिक लैटिस। ठीक है, ओके, तो ये जो एंगल होगा ना ही ये 90 का होगा और ना ही 60 का होगा। तो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिसेस, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ठीक है, आपका पैरेललोग्राम एंड रोम्बिक। ये आपके 5 टाइप के 2 डायमेंशनल लैटिसेस हो गए। 2 डायमेंशनल लैटिस का अर्थ होता है भाई साहब जो लैटिसेस आपके अरेंज होते हैं इस तरीके से कि मतलब आपका सिर्फ 2 ही डायमेंशन कवर हो, तीसरा डायमेंशन कवर ना हो। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, okay, a 2-dimensional lattice is a regular arrangement of points. In order to specify it completely, only a small part of the lattice is described. ठीक है, एक मिनट यार। तो बच्चा पार्टी एक जो 2-डायमेंशनल लैटिस होता है, ठीक है, a 2-डायमेंशनल lattice is a regular arrangement of points. In order to specify it completely, only a small part of the lattice is described. Choose 4 points in a 2-dimensional lattice and connect them to give a parallelogram. This figure is known as a unit cell. तो ऐसे भाई साहब कोई भी 4 पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। ये आपका एक फुल लैटिस हो गया। दिस बेसिकली अ पैरेललोग्राम। फुल लैटिस इज जनरेटेड बाय रिपीटेडली मूविंग द यूनिट सेल इन डायरेक्शन ऑफ इट्स एजेस। ठीक है, तो फॉर एनी लैटिस a unit cell can be chosen in many different ways and may include any cell that has interior points. The smallest unit cell that shows the full symmetry of the lattice is most convenient. तो ये पूरा भाई साहब है, इसमें से कोई एक को उठा लो, ये हो जाएगा आपका यूनिट सेल। ठीक है, दिस विल बेसिकली बी अ यूनिट सेल। ये 2-डायमेंशनल लैटिस है अभी भी। ठीक है, द यूनिट सेल नॉर्मली टेकन फॉर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम लैटिसेस आर स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम रिस्पेक्टिवली, but for hexagonal lattice a rhombus with an equal angle of 60 degree is taken as a unit cell. मतलब देखो हेक्सागोनल में आप क्या लोगे, इस तरीके का रोम्बस लोगे। ठीक है, ये आपका यूनिट सेल होगा। इसमें क्या यूनिट सेल हो जाएगा, देखो स्क्वायर में ये स्क्वायर हो गया यूनिट सेल, इसमें ये रेक्टेंगल हो गया यूनिट सेल, पैरेललोग्राम में ये एक पैरेललोग्राम हो गया यूनिट सेल,
रोम्बिक में भाई साहब ये रोम्बिक हो गया, लेकिन हेक्सागोनल में आप इसको यूनिट सेल लोगे, इसीलिए ए और बी हो गया, देखो ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ए एंड बी। तो आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, द यूनिट सेल्स नॉर्मली टेकन फॉर स्क्वायर रेक्टेंगुलर एंड पैरेललोग्राम लैटिसेस आर स्क्वायर रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी देखो रोम्बिक का अलग से नहीं लिखा है क्योंकि रोम्बस क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है, ओके। हाउएवर, ठीक है, a rhombus with an angle of 60 degrees taken as a unit cell. However, rectangular unit cell with an interior point is normally taken as the rhombic lattices, ठीक है। तो टू डायमेंशनल लैटिस मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप ऐसा समझो कि बहुत सारे बॉल्स को अरेंज किया गया है और इन बॉल्स को एक ही डायमेंशन में रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया टू डायमेंशनल लैटिस। दिस इज बेसिकली टू डायमेंशनल लैटिस, जो 5 तरीके के होते हैं, क्या क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड हेक्सागोनल, ठीक है। तो ये सारे आपके 5 लैटिसेस हो गए, ठीक है। ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड पीपल।